So let us start with a very quick revision of what we have learned in the last session. So if you remember, in the last lecture we have started with new chapter, that is electromagnetic induction. Electromagnetic induction. We will just revise important points. So the question was, as you remember, 10th number chapter में हमने देखा था electric current produces magnetic field. Electric current produces magnetic field. So similarly, we wanted to know if magnetic fields can also produce electric current. If magnetic fields can also produce electric current. And of course, as we have seen, the answer is yes, they do. तो हमको पता है magnetic fields also produce electric current, but under some conditions. Condition ये था, there has to be a relative motion between coil. मतलब एक सर्किट था जिसमें एक coil था. We had a circuit which was consisting of a coil and a galvanometer. एक coil है, and then you have a galvanometer attached to it, and then we took a bar magnet. एक magnet था. This magnet was moved relative to the coil. जैसे ही आपने मैग्नेट को कॉइल के पास या कॉइल से दूर मूव किया, तो we see a small deflection. When you move the magnet towards the coil, you see deflection in the galvanometer in one direction. When you move bar magnet away from the coil, you see deflection in the opposite direction. मतलब in both the cases, and as you can see, is coil के साथ सिर्फ galvanometer है. You have not connected any source of EMF. आपने कोई बैटरी कनेक्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं है वहां पे. Not a cell, nothing. तो when a magnet is moved towards or away, you get a deflection in the galvanometer. मतलब a current is induced. Then other way around, if you move coil with respect to the magnet, again you see current is induced in the coil. तो ये जो observations हमने देखे थे किसके एक्सपेरिमेंट से? Faraday's experiment. Okay. तो ये पहले 3 points थे. Then if you remember, the magnitude of induced current depends on relative speed of relative motion. कितने speed से magnet and coil are moving with respect to each other. It also depends on number of the turns in the coil, right? So then इसके बाद Faraday did little bit of modification to the experiment, and उसने एक magnet की जगह पे दोनों ही coil use कर लिए. सिर्फ इतना था कि दो coil जो है उसमें से एक coil को he connected a rheostat, and you know rheostat is a device which is used to change resistance. तो resistance change करने के काम में आता है rheostat RH, and there was a battery connected to this, and there was a key K. Okay. और जिस coil को rheostat, battery और key connected है in series, of course, is called as primary coil. और जो दूसरा coil था उसको सिर्फ एक galvanometer connected था, which was called as secondary coil. And now in this experiment, what he did 3 different things. अगर आपको याद होगा, he did 3 different things. पहले तो make and break मतलब ये जो सर्किट है इसको बेसिकली ओपन करना, क्लोज करना. So when he did this open close, so every time there was a small deflection in the galvanometer. जब ओपन किया तो deflection was in one direction, जब क्लोज किया तो deflection was in opposite direction, right? The number 1 observation. Number 2, keeping the key closed, secondary coil was moved towards or away. या तो फिर primary को भी move कर सकते हो. मतलब basically keeping the key closed, there was a relative motion in between P and S, primary and secondary coil. Again, when the coil was moving away, there was a small deflection in the galvanometer. फिर when it was brought near, the deflection was in the opposite direction.
Then number three was by changing the value of resistance in the rheostat. क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज करोगे तो प्राइमरी में करंट चेंज होगा. प्राइमरी में करंट चेंज होने से क्या हुआ, क्योंकि आपको पता है व्हेनेवर करंट फ्लोज तो देयर इज मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद दैट करंट. मतलब बेसिकली फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ करंट दिस कॉइल इज प्रोड्यूसिंग फील्ड लाइंस. जैसे ही मैंने करंट की वैल्यू बढ़ा दी तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी बढ़ जाएंगे, और बढ़ा दी तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ेंगी. और करंट हम कैसे बढ़ा रहे हैं, बाय चेंजिंग द रेजिस्टेंस. सो व्हेन यू चेंज रेजिस्टेंस करंट चेंजेस. करंट चेंज मींस चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी. और सेकेंडरी कॉइल जो है वो तो पहले मतलब प्राइमरी के मैग्नेटिक फील्ड में है. मतलब करंट चेंज हुआ प्राइमरी में, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ प्राइमरी का, लेकिन वो करंट लिंक था, वो फील्ड लिंक था, मैग्नेटिक फील्ड लिंक था सेकेंडरी के साथ. Hence, a current is induced in the secondary coil, and that is basically noted down by galvanometer. So, galvanometer is used to see if there is some change in the current, because of course, change in the current matlab some current is induced or not in the secondary coil, right? Then what we saw was ये जो 7-8 observations थे Faraday के. Faraday put forward 2 laws to explain all these 7 observations. उसमें से Faraday's first law आपको बताता है कि क्या हो रहा है, what is happening. That is what is called as qualitative law, because it tells you the quality of the thing. Okay, तो क्या हो रहा है, whenever there is change in the flux linked with a coil, there is a current induced in the coil. जब भी मतलब चाहे वो आप ऊपर का डायग्राम देखो जिसमें एक मैग्नेट और एक कॉइल है, या फिर नीचे जिसमें दोनों कॉइल है. सो यू नीड टू नो एवरी मैग्नेट या एवरी मैग्नेटिक फील्ड हैज फील्ड लाइंस. तो आपके पास कोई भी एक मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इट हैज फील्ड लाइंस. तो आई विल बी ड्राइंग सम फील्ड लाइंस हियर. तो यू हैव सम फील्ड लाइंस लाइक दिस. So whenever there is a relative motion between magnet and coil, what is happening? The flux is changing. So हम ऐसा बोल सकते हैं whenever there is change in the flux linked with the coil and current is induced. A current is induced या तो बोल सकते हो EMF is induced. So whenever there is change in the flux linked with the coil, an EMF or current is induced in the coil. ये है आपका first law. It is just a statement, that's it. अब अभी तक हमने ऐसा बोला है कि current is induced, ठीक है, EMF is induced, but we have not spoken about the quantity. कितनी quantity में induce हुआ. So second law is a quantitative law which tells you कितना induce हुआ. So Faraday's second law tells you that the amount of EMF induced E is equal to d phi by dt, where phi is flux linked with the coil, d phi by dt is rate of change of flux linked with the coil. क्योंकि आप जैसे ही इसको मूव कर रहे हो तो what is changing is flux. तो पर सेकेंड में कितना फ्लक्स चेंज हुआ, दैट इज नथिंग बट d phi by dt. तो यहां तक हमारा लास्ट सेशन में हुआ था. दिस इज व्हाट यू मस्ट नो. इतना हमने ऑलरेडी किया है. सो now it is time for us to go ahead with the next topic, and that is Lenz's law. Just a minute. ठीक है, we don't care for this. So next is Lenz's law. Lenz's law और Faraday's second law, they are the same thing. सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि लेंज लॉ आपको बताता है कि ये जो डायरेक्शन है किसका, इंड्यूस्ड ईएमएफ का. एज यू जस्ट हमने अभी अभी देखा. मैं इस डायग्राम को नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं. वी विल नीड दिस. गुड. अब जैसे ही देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड द कॉइल, द फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस. Because flux linked with the coil changes, तो क्या होगा, इसमें करंट इंड्यूस होगा, और करंट इंड्यूस हुआ मतलब करंट का डायरेक्शन होगा.
the direction of the induced current is such that it opposes the cause of producing it. मतलब क्या, मैं आपको एक सिंप्लीफाइड एग्जांपल बता देता हूं पहले. तो आइडिया हियर इज, इमेजिन, मैं इतने सारे टर्न्स नहीं लूंगा, इमेजिन आई विल टेक जस्ट अ सिंगल टर्न ऑफ द कॉइल, और इस कॉइल में हमने कोई सेल कनेक्ट नहीं किया, हमने कोई बैटरी कनेक्ट नहीं किया. व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं इस कॉइल के पास में मैग्नेट के नॉर्थ पोल को लेके जाता हूं. मतलब वी आर मूविंग द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल. एज यू आर मूविंग द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज इंक्रीजिंग. क्योंकि टुवर्ड्स लेके जा रहे हो तो ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस यहां से पास होंगे. तो एज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट is brought near to a coil, the flux linked with the coil increases. अब going back to 11th standard, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जैसे ही फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा. तो यहाँ पे करंट इंड्यूस हो गया. आई एम शोइंग दिस बाय ग्रीन कलर्ड एरोस. तो देयर इज अ करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल. आपको मेजर करना है तो आप एक गैल्वेनोमीटर लगा लें, राइट. गुड. There are two possibilities of direction, एक तो clockwise, एक anti-clockwise. यहाँ होता क्या है, in this case when north pole of a magnet is brought near a coil, the current induced is anti-clockwise. और आपको पता है 10th number chapter, any current carrying a loop behaves as if it is a magnetic dipole. मतलब ये जो करंट कैरिंग लूप है ये मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, और मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, राइट. तो इमेजिन ये एक कॉइल है, एक कॉइल को आप देख रहे हो. आप अगर कॉइल को लेफ्ट से देख रहे हो, लेफ्ट से मतलब जहां से मैग्नेट उसको अप्रोच कर रहा है, और मैग्नेट का कौन सा फेस अप्रोच कर रहा है, नॉर्थ पोल. तो ये जो करंट इंड्यूस होगा ये ऐसा होगा, द फेस ऑफ द कॉइल which is towards north pole, towards magnet, will behave as north pole. मतलब ये खुद भी नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा. और अगर इसी कॉइल को आप दूसरे साइड से देखते हो तो वही करंट जो एंटी क्लॉकवाइज था वो आपको क्लॉकवाइज दिखेगा. मतलब द अदर फेस ऑफ द कॉइल विल बिहेव लाइक साउथ पोल, करेक्ट. अब हुआ क्या, हुआ ये आपको पता है, नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल दे रिपेल. वेरी गुड, वेरी गुड. तो अब क्या होगा कि ये भी नॉर्थ पोल था, ये भी नॉर्थ पोल है, दे विल स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर. तो देखो कितना मतलब ही है ये, है ना. सो सेल्फिश. व्हाई कॉइल, क्यों, एक तो पहले करंट था नहीं, फिर क्या हुआ कि मैग्नेट को हमने पास में मूव किया, मतलब क्या हो गया कि फ्लक्स इंक्रीज हो गया. फ्लक्स इंक्रीज हुआ मतलब फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो करंट इंड्यूस हुआ, और करंट का डायरेक्शन ऐसा इंड्यूस हुआ जिसने प्रोड्यूस किया उसी को अपोज कर रहा है ना. अगर मैं मैग्नेट को मूव नहीं करता करंट इंड्यूस होता क्या, नहीं. सो वी आर मूविंग द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल with north pole facing the coil. Because there is change in the flux linked with the coil, there is a current induced in the coil, and this current is such is, I mean, the direction of the current is such that it is producing a magnetic field, है ना. क्योंकि यहाँ नॉर्थ पोल बोल दिया तो मतलब करंट कैरिंग लूप क्या हो गया, मैग्नेट हो गया. So this induced current is producing a magnetic field, and that magnetic field is opposing its own creator. जिसने बनाया उसी को अपोज कर रहा है वो. So that is what Lenz law tells you. So Lenz law tells you that the direction of the induced EMF or induced current is such that it opposes the cause. Cause क्या था यहाँ पे, change in magnetic flux, increase in magnetic flux. So it opposes the change in magnetic flux which produces it. जिसने प्रोड्यूस किया उसी को अपोज कर रहा है वो. तो it is also just a statement. So you can just write down in a very simple way. What you can say is, give me a minute. Okay, what you can say is, तो टॉपिक समझा है अच्छे से, सिंपल है. Good. So you just have to say the direction of
the direction of induced EMF or induced current or induced current in a coil is such that it opposes the change in the magnetic flux, the change in the magnetic flux, which produces it. Therefore, EMF induced equal to d phi by dt. ये तो था फैराडे का सेकेंड लॉ. लेंज ने बोला माइनस. That's it. So the only change was minus. A negative sign here indicates that the induced EMF or induced current opposes the change in magnetic flux. So negative sign indicates that just a minute. Okay. Negative sign indicates that the induced EMF or current opposes the change in magnetic flux. Good. तो लेंस का ये लॉ आने के बाद what Faraday did, Faraday thought कि ठीक है ये जो बोल रहा है let us verify. तो जो मैंने अभी अभी एक्सपेरिमेंट बताया आपको, एक कॉइल था, एक मैग्नेट था. तो Faraday performed this experiment which is called as Faraday's coil and magnet experiment. तो Faraday's coil and magnet experiment. What Faraday did, again a simple thing. What he did, मैं आपको theoretically पहले पूरा explain कर देता हूँ. What he did was a simple thing. He took a bar magnet. Then, of course, let us say this is North Pole, this is South Pole. He took a coil. और केस 1 में what he did, पहले तो मैग्नेट को टुवर्ड्स मूव किया, फिर मैग्नेट को अवे मूव किया. तो what happens in the first case? Keeping the coil stationary, north pole of the magnet was moved towards the coil. तो इस केस में I already told you, इस केस में क्या होगा? इस केस में a current will be induced in the coil in anti-clockwise direction. अब हम anti-clockwise direction क्यों बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं अब एक anti-clockwise और clockwise डिपेंड करता है आप कहाँ से देख रहे हो. It depends on your frame of reference. If you're looking from the side of the magnet, you see anti-clockwise. If you see from the opposite side, you see the same current as clockwise. So in the first case, when north pole of the magnet was moved towards the stationary coil, the current induced was such that the side of the coil facing the magnet is north pole. तो क्या होगा? ये भी north, वो भी north, repulsion, right? So the induced current in the coil is such that it is opposing the motion of magnet. क्योंकि मैग्नेट को पास में आने देगा नहीं, मैग्नेट पास में आएगा नहीं, तो क्या होगा? जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है वो अब नहीं होगा, मतलब इट इज अपोजिंग बेसिकली. उल्टा केस अगर आप देखोगे तो इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड अवे, देन द करंट induced in the coil is in the clockwise direction, which means the side of the coil facing
the magnet behaves like south pole. तो ना दूर जाने देगा ना पास आने देगा. You see, because when you are pulling this magnet away, जब आप मैग्नेट को अवे पुल कर रहे हो, अवे मूव कर रहे हो, तो नॉर्थ पोल और जो कॉइल ने करंट प्रोड्यूस किया, मैग्नेट के साइड का जो फेस होगा, इट इज बिहेविंग लाइक अ साउथ पोल. नॉर्थ और साउथ में क्या होता है? अट्रैक्शन. तो इन ईदर केस जब फ्लक्स लिंक विद द कॉइल वाज इंक्रीजिंग, तो जो पहला केस है, इस केस में मैग्नेट वाज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, मतलब फ्लक्स लिंक विद द कॉइल वाज इंक्रीजिंग, एंड द करंट इंड्यूस्ड इज इन सच अ वे दैट the side of the coil facing the magnet becomes north pole. तो north north में repulsion, तो वो it is opposing the increase in flux. In the second case, when the magnet was moved away, तो अब जब मैग्नेट मूव होगा अवे, तो फ्लक्स लिंक विद द कॉइल विल डिक्रीज नॉट इंक्रीज, क्योंकि मैग्नेट आप दूर मूव कर रहे हो, यू आर मूविंग मैग्नेट अवे. तो इन दिस केस द साइड ऑफ द कॉइल फेसिंग द मैग्नेट बिहेव्स लाइक अ साउथ पोल. फिर वो दूर भी जाने देगा नहीं, क्योंकि साउथ पोल विल अट्रैक्ट नॉर्थ पोल. सो इन ईदर केस, पहले केस में फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था तो इंड्यूस करंट ने अपोज कर दिया. दूसरे केस में जब फ्लक्स डिक्रीज हो रहा था तो इंड्यूस करंट ने वापस उसको अपोज किया. सो बोथ केसेस देयर इज अपोजिशन. तो यू हैव टू एक्सप्लेन दिस वन बाय वन, और बहुत सिंपल है. इट इज एक्सट्रीमली सिंपल जॉब टू एक्सप्लेन दिस एंड वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल. तो अब कैसे एक्सप्लेन करोगे? जस्ट पुट डाउन इन योर ओन वर्ड. सिंपल. imagine a bar magnet is moving towards a stationary coil. या फिर ऐसा बोलो, इमेजिन नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट, ज्यादा स्पेसिफिक होगा. इमेजिन नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट is moving towards a stationary coil. हमने दिखाया है फिगर ए में, as shown in figure A, right? Good. In this case, flux linked with the coil increases, and hence an EMF, or you can say current, hence a current is induced in the coil. Right? तो अब ये जो करंट इंड्यूस हुआ, ये क्या करेगा? ये मैग्नेटिक डाइपोल जैसा एक्ट करेगा. दिस करंट कैरिंग कॉइल या फिर लूप behaves like a magnetic dipole. Right? The current induced is such that the induced current is such that the face of the coil, the side of the coil facing the magnet behaves like north pole. Hence, there is repulsion between the magnet and the coil.
ये हो गया आपका पार्ट 1 एक्सप्लेन. नाउ मूविंग टुवर्ड्स पार्ट 2. पार्ट 2 में भी ऐसे ही बोलना है. सेम थिंग. इमेजिन नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इज मूविंग away from a stationary coil. क्योंकि now you are moving this away. So imagine north pole. नहीं, north pole. North pole of a bar magnet is moving away. From a stationary coil. पहले हमने नॉर्थ पोल टूवर्ड्स मूव किया, अब हम नॉर्थ पोल को अवे मूव कर रहे हैं. हमने पोलैरिटी चेंज नहीं किया मैग्नेट का. ओके, गुड. सो इमेजिन नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम अ स्टेशनरी कॉइल एज शोन इन फिगर बी. इसके बाद क्या होगा? इन दिस केस फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल डिक्रीजेस एंड हेंस अ करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल. ओके, तो एग्जैक्टली सेम लाइंस पे चलते जाना है. एंड दैट इज व्हाई आई कीप ऑन सेइंग कि सबसे इजी कोई सब्जेक्ट है तो वो फिजिक्स है. बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड इंग्लिश यू ऑलरेडी नो. लिखना तो है, क्या करेंगे? और इन दिस केस फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल डिक्रीजेस. क्योंकि अवे मूव कर रहे हो तो लेस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विल इंटरैक्ट विद द कॉइल, मतलब फ्लक्स लिंक्ड इज डिक्रीजिंग. Hence, a current is induced in the coil. This current carrying coil behaves like a magnetic dipole. आगे फिर वही चीज. आगे क्या होगा? This induced current, मैंने यहाँ करंट लिखना भूल गया तो यहाँ पे मैं करंट लिख देता हूँ. This induced current, the induced current is such that the side of the coil facing the magnet behaves like, in this case, south pole. Very good. तो सेम लाइंस पे the induced current is such that the side of the coil facing the magnet behaves like south pole. Then hence there is attraction. तो अभी रिपल्शन की जगह पे क्या होगा? Attraction. Hence there is attraction between the magnet and the coil. Hence there is attraction between the magnet and the coil. So in both cases, what is happening? In both cases, hence in both cases क्या हो रहा है? both cases में opposition हो रहा है. Hence in both cases the induced current or EMF is such that it opposes the cause कौन सा था? मोशन. प्रोड्यूसिंग इट. मोशन को ही अपोज कर दिया. cause producing it. क्लियर यहां तक? सिंपल. गुड. सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक. अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इन कनेक्शन ही है, यही चीज है, सिर्फ लेंज ने अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है. इट्स द सेम थिंग. सो लेंज एक्सप्लेन द सेम आइडिया बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन. तो उसको हम बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन इन लेंज लॉ. क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे देयर इज अपोजिशन. ना टुवर्ड्स आने देगा ना अवे जाने देगा. सो देयर इज अपोजिशन. आपको पता है जब अपोजिशन हो तो नॉर्मली we talk about resistive forces like friction. If there is friction, there is loss of energy. तो लेंज एक्सप्लेन कि यहाँ पे कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है. So whenever this thing is happening, magnet is moving towards the coil or it is moving away from the coil. In both the cases, energy is conserved. तो ये जो फैराडे का coil and magnet experiment था, इसी को एक अलग तरीके से एक्सप्लेन किया लेंज ने. That is called as energy conservation in Lenz law. So let's see what is energy conservation in Lenz law. Energy conservation.
in Lenz's law. Well, it is again the same thing. चीज वही है, सिर्फ अलग तरीके से समझाया है. तो according to Lenz, the cause of induced current may be, cause of induced current. अब यहाँ पे आप induced current की बात कर रहे हो सिर्फ एक तरीके से. क्या क्या किया आपने? सिर्फ मैग्नेट को मूव किया और कॉइल को स्टेशनरी रखा है. Lenz what he did, सबसे पहले समझ लो, he took a magnetic field. So there is a magnetic field. Let us take a magnetic field. तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है और मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड इट इज कांस्टेंट, इट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम. जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स चेंज होगा क्या? नहीं होगा, ऑफ कोर्स. और यहाँ पे कोई मैग्नेट नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से है वी डोंट केयर. बट इन दिस रीजन जहां पे मैंने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ किए हैं, दीज आर पैरेलल वेक्टर्स व्हिच आर रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज अ रीजन वेयर यू हैव अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो इस केस में अगर मैंने एक कंडक्टर को, याद रखना अब मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूं, I am strictly talking about a conductor over here. This is a conductor. This is not a bar magnet. This is a conductor, right? I have taken a conductor, जैसे एक वायर रख दिया और एक मैग्नेटिक फील्ड है. दोनों मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं हो रहा है और कंडक्टर भी अगर रेस्ट पे रहा तो nothing is going to happen. Why? Nothing is changing. फ्लक्स चेंज हुआ क्या? नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है. दूसरा, कंडक्टर भी रेस्ट पे है तो फ्लक्स चेंज होगा? नहीं. तो फ्लक्स चेंज कब होगा? या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए या फिर कंडक्टर को मूव होना चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू Lenz, according to Faraday's law, what you know is the cause of the induced current, there are two causes. एक the motion of a conductor inside a uniform magnetic field. So this conductor has to move. राइट. अब बोलोगे कहाँ चेंज हुआ? पहले भी उतना ही फ्लक्स था, अभी भी उतना फ्लक्स था, तो आई कैन मूव इट लाइक दिस. सो कॉज नंबर वन इज द मोशन. किसका मोशन? ऑफ द कंडक्टर या फिर कॉइल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड. दूसरा अगर मैंने कॉइल को, इमेजिन मैंने कॉइल को फिक्स रख दिया, है ना. मैं कॉइल ले सकता हूं, मैं कंडक्टर भी ले सकता हूं, डजंट मैटर. आई कैन से कंडक्टर, आई कैन से कॉइल, एक ही बात है. So you can take a coil, fine. You can take a straight conductor, okay. Doesn't matter really. दूसरा cause. तो पहले केस में क्या था कि the coil was moving, it was in motion. Cause number two, हमने coil को stationary कर दिया. अब क्या चेंज होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड, मतलब फ्लक्स चेंज होना चाहिए. तो फ्लक्स should keep on changing. तो अगर पहले फ्लक्स कम लेंथ था तो अभी ज्यादा होगा, या फिर अदर वे अराउंड. मतलब नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दिस फ्लक्स इज चेंजिंग. और फ्लक्स क्यों चेंज होगा? क्योंकि जो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रहा होगा, तो फ्लक्स इज चेंजिंग. तो फ्लक्स कैन आल्सो चेंज. ओके, तो वन ऑफ दीज टू थिंग्स शुड हैपन. सो पहले हम नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम डिटेल में देखेंगे कि क्या हो रहा है इन बोथ द केसेस. इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है. सो दैट इज अ ब्यूटी ऑफ दिस सब्जेक्ट कि ऊपर से हमको पता रहता है हाँ ऐसा है, बट देन यू हैव टू एक्सप्लेन इन डिटेल. तो नंबर वन पहले तो लिख देते हैं, वी नो दैट द कॉज ऑफ induced current is, actually the causes of induced current are: number one, motion of a coil, and to be precise any conductor, motion of a coil or conductor inside a uniform magnetic field. Number two, change in the flux linked with a stationary coil. Change
in the flux linked with stationary coil. तो व्हाट इज द डिफरेंस? कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ पहले आप इन टर्म्स ऑफ मैग्नेट, इन टर्म्स ऑफ मोशन ऑफ मैग्नेट एक्सप्लेन कर रहे थे। तो याद रखो फैराडेज के जो एक्सपेरिमेंट थे उस केस में हमने क्या बोला, हमारे पास मैग्नेट है, हमारे पास कॉइल है, दैट्स इट। ओके, या तो मैग्नेट को मूव करोगे या कॉइल को मूव करोगे या दोनों को मूव करोगे। अब एनर्जी कंजर्वेशन की जब बात हो रही है तो ये बहुत पर्टिकुलर केस है जिसमें मैग्नेट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है। कहां से आया आपको पता है? यू कैन आल्सो जनरेट मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं उसको। मतलब बेसिकली क्या होता है बता देता हूँ बिकॉज इट विल हेल्प यू आउट। व्हाट हैपेंस इज, आपके पास ऐसे दो कंडक्टिंग बेस होते हैं, कोर होते हैं बेसिकली। इस कोर के ऊपर वाइंडिंग होता है और ऐसा ही और एक होता है सामने की तरफ। एक में से आप क्लॉकवाइज करंट सर्कुलेट करते हो, एक में से आप एंटी क्लॉकवाइज करंट सर्कुलेट करते हो, राइट? तो जिसमें से आप क्लॉकवाइज करंट सर्कुलेट कर रहे हो वो साउथ पोल बन जाता है, जिसमें से आप एंटी कर रहे हो वो नॉर्थ बन जाता है। तो ये हो गया आपका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया इस रीजन में। तो ऐसा आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर सकते हो। तो इन दिस केस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया, कहीं से तो आया, बट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। सो इन द केस फर्स्ट देयर इज अ मोशन ऑफ द कंडक्टर। तो अब इन दिस केस व्हाट विल हैपन इज, ये जो केस है इसमें क्या होगा, इस केस में आपके पास एक कॉइल है which is moving inside a uniform magnetic field। अब होगा ये, since the coil is moving, अब मोशन का डायरेक्शन आप जो चाहो वो ले सकते हो। यू कैन टेक दिस कॉइल मूविंग अपवर्ड्स। तो ऐसा करता हूं मैं, आई कैन जस्ट रिड्यूस द साइज ऑफ द कॉइल एंड आई कैन से कि ये जो कॉइल है, लेट अस टेक दिस कॉइल इज मूविंग अपवर्ड्स। ऐसा ऊपर की तरफ ये कॉइल जा रहा है, राइट? है तो क्लियर? So in this case, what is going to happen? Since the coil is moving through magnetic field, so flux linked with the coil will change, and because of that, a current will be induced, correct? और अगर current induce हो गया इसमें, तो आपको पता है, you know this, it becomes a current carrying conductor inside an external field. So do you remember Bill F equal to BIL? F equal to B into I into L. Whenever you have a current carrying conductor inside external field, there is a force of magnetic field acts on this current carrying conductor. और हुआ क्या देखो, लिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक ही चीज है, दो तरीके से समझाई जा सकती है। थिंग इज द सेम। हर दोनों केस में अल्टीमेटली तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से करंट इंड्यूस होगा। दैट इज द बेसिक आइडिया। अब ऐसा है कि पहले केस में कॉइल वाज मूविंग, तो फ्लक्स वाज चेंजिंग, तो करंट वाज इंड्यूस्ड। नाउ इट बिकम्स अ करंट कैरिंग कॉइल इनसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एंड एनी करंट कैरिंग कॉइल इनसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड experiences a magnetic force। तो इस केस में जो फोर्स जनरेट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है टू दैट ऑफ मोशन। मोशन क्या था? बॉटम टू टॉप। और यहाँ पे जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, कॉइल जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वो जो फोर्स है वो है डाउनवर्ड। सो दिस इज फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, राइट? तो इस केस में व्हाट यू से इज that the driving force or the force which was already there is opposed by force due to magnetic field। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, since the flux linked with the coil is changing, a current is induced and hence this coil becomes a current carrying coil inside external magnetic field, and hence it will experience a force which is given by BIL। this force due to magnetic field is opposite to the direction of motion। हो गया, ये हो गया
नंबर 1, तो ये जो पहला आपने लिखा है मोशन ऑफ अ कॉइल इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. नंबर 2 चेंज इन द फ्लक्स लिंक विद द स्टेशनरी कॉइल. ओके, अब ऐसा है, केस 2 इज नॉट रियली डिफरेंट फ्रॉम केस 1, सिर्फ बोलने का तरीका अलग हो जाता है. इस केस में आप, पहली बात तो इस केस में आप कॉइल को मूव कर ही नहीं रहे हो, तो यू आर कीपिंग द कॉइल स्टेशनरी, राइट. What you are doing is you are changing the flux. So you are changing the flux. The flux is changing basically. तो अब जब भी फ्लक्स चेंज होगा, तो क्या होगा? करंट इंड्यूस होगा. करंट इंड्यूस होगा तो ये करंट खुद का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और वो खुद का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा तो उसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो एक्सटर्नल फील्ड को अपोजिट है, राइट. तो क्या हुआ वापस से? अपोजिशन, राइट. तो सेम चीज, एज आई टोल्ड यू, इज द सेम थिंग. पहले केस में व्हाई डू यू हैव टू टॉक इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस? बिकॉज देयर वाज मोशन ऑफ द कॉइल. तो उस केस में मोशन की वजह से फ्लक्स चेंज हुआ, फील्ड की वजह से नहीं. फील्ड वाज कांस्टेंट, फील्ड वाज यूनिफॉर्म. It was not changing with time also. It was the same at every instant of time, but the coil was moving. Because coil was moving, flux was changing. Because flux was changing, current was induced, and hence this coil became a current-carrying coil inside external magnetic field. So there is a force acting on this coil due to magnetic field, which is opposite to the direction of motion. दूसरा केस is you have a stationary coil. तो अभी coil is no more in motion. It is stationary, but the flux is changing. अब फ्लक्स चेंज होने के भी दो रीजन होते हैं. पहला तो देखा हमने, मैग्नेट, मूव द मैग्नेट. या फिर दूसरा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ये इसको टाइम वेरिएबल बना दो. हाँ, कीपिंग द पोल्स एट द फिक्स डिस्टेंस, मतलब फिक्स जगह पर रख दिया. फिर आप उन दोनों पोल में से करंट चेंज करो, राइट. बहुत सारे तरीके होते हैं. मैं आपको दोनों तीनों तरीके बता देता हूं कि हाउ यू कैन चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स. ये एक हो गया नॉर्थ पोल, एक हो गया साउथ पोल. मैंने आपको अभी बताया कि नॉर्थ पोल अगर बनाना है तो सर्कुलेट करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अगर आपको साउथ पोल बनाना है तो यस. तो अभी देखो, अगर मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना है, क्योंकि मैंने कॉइल कहां रखा है? इन दोनों के बीच में रखा है. तो आई विल टेक दिस कॉइल एंड कीप इट इन बिटवीन. तो ये जो कॉइल है, इस कॉइल को रख दिया इसके बीच में. अब हो क्या रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पे जनरेट हुआ है नॉर्थ से साउथ, करेक्ट. अब क्योंकि हमको कॉइल को स्टेशनरी रखना है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना पड़ेगा. अब बहुत सारे तरीके हैं, जैसे एक तो करंट की वैल्यू चेंज कर दो, हो गया. पहले जितने फ्लक्स लाइंस थे, करंट बढ़ाओगे तो फ्लक्स लाइंस बढ़ जाएंगे, फ्लक्स इज चेंज्ड, राइट. दूसरा, पहले जिसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट था उसको क्लॉकवाइज कर दो, और जिसमें क्लॉकवाइज था उसको एंटी क्लॉकवाइज कर दो. मतलब इन दिस केस यू नो फ्लक्स विल बेसिकली चेंज, आई मीन मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज डायरेक्शन. फिर वापस चेंज कर दो, वापस चेंज हो गया, फिर वापस चेंज कर दो. तो दिस इज अनदर वे ऑफ चेंजिंग फ्लक्स, राइट. गुड. तो वैसे तो अल्टरनेटिंग सप्लाई में तो ये होने ही वाला है, होता ही है अल्टरनेटिंग सप्लाई में, पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल. गुड. So these are the two ways. अब interestingly, what is happening inside the coil? तो जैसे ही फ्लक्स चेंज हुआ, करंट इंड्यूस हुआ तो it becomes a current carrying loop, and any current carrying loop generates its own magnetic field. तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, it will be such that it is opposite in direction to the external field. तो यहाँ पे भी हो गया अपोजिशन. तो in both of these cases, ये जो दोनों केसेस थे, इन दोनों केसेस में देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, राइट. देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी. तो हेंस अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, चाहे मोशन ऑफ कॉइल हो इन स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड,
या फिर स्टेशनरी कॉइल हो इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड. तो दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू एक्सप्लेन. गुड, राइट. तो अभी थियरी मैं यहाँ पे लिख के नहीं दूंगा, आई विल पुट इट इन टर्म्स ऑफ नोट्स. इतना ही है, सिर्फ दो केसेस याद रखना. दिस आर द टू केसेस दैट यू विल सी. ओके, so that's it for today. In the next session we will go ahead with first what is basic definition of flux. आपको पता है flux क्या है, assumed you know, but थोड़ा उससे आगे जाएंगे. हमको पता है number of field lines passing perpendicular through a given area is defined as flux, लेकिन we have to go one step ahead. That will be in the next session.